हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान सागर क्लासेस। आज मैं इस वीडियो के अंदर फुल पेपर सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, पेपर नंबर 10 का, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन वीडियो। हम हर एक क्वेश्चन इन डिटेल डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी हम देखेंगे। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर आंसर चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन वीडियो। Question number one is of MCQ question. As per the provision of the Companies Act 2013, the maximum the rate of commission paid or agreed to be paid to the underwriter in case of these shares shall not exceed, यानी कि जब भी आप अंडरराइटर को कमीशन देते हो तो आपका एक मैक्सिमम कमीशन एज पर योर कंपनीज एक्ट 2013 इज द 5%, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। when the shares is issued at par equal to its face value is called। जो पार पे जब इशू करते हैं तो इसका मतलब एट पार फेस वैल्यू के जो इक्वलेंट होता है जब शेयर्स आपके किस पे इशू होते हैं, एट पार। करेक्ट आंसर इज ए। अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ट्रेड रिसीवेबल ऑन डिफर्ड credit terms are classified as deferred credit terms are classified as trade receivables में पूछा है तो that means your asset। यहाँ पे यानी कि इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इज सी, अदर नॉन करंट assets। the financial statements of a company shall be in the form provided in the financial statement is given in the schedule 3। correct option is B। interest on foreign bonds received by the Indian company belonging to the manufacture sector should be shown under the in which activity, that is cash flow from the investing activity। Next, which of the following is or are not shown in subsidiary register of the banking company? Correct answer is letter of indemnity। As per Ind AS 10, which of the following is not an adjusting event after the reporting date? Reporting date के बाद ऐसे कौन से events हैं जो कि आपके adjusting event नहीं है? Correct answer is D, announcing or commencing the implementation of the major restructuring। Ind AS 1, presentation of financial statements applied to consolidated financial statement, separate SFS में भी अप्लाई होता है। उसके बाद यानी कि इसका ऑप्शन बच्चों दोनों ही हो सकते हैं, सी और डी। जब ए और बी हो गया तो ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है और बोथ ए एंड बी, तो दोनों ऑप्शंस ही करेक्ट है यहाँ पे, सी और डी। बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी। Ind AS 37 deals with the provision contingent liability, direct question, contingent liability and contingent asset। देन हम चल रहे हैं अब ऑडिट के एमसीक्यू पर। ऑडिट का एमसीक्यू है फर्स्ट हमारा, ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द वर्क डन बाय द ऑडिटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। which of the following is or are the benefits of the audit sampling? It's the all of the above। under section 140 subsection 5 of the Companies Act 2013, auditor can be removed from his tribunal। correct answer is C, tribunal। audit certificate contains expression of opinion। Second last is which of the following is not the layer of the rule self governance in India? It's notified area council। under section next last MCQ is under section 34 of the Cooperative Society Act 1912, a registered society may contribute an amount not exceeding 10% of the net profit remaining after the compulsory transfer to the reserve fund for any charitable purpose। तो these are the MCQ solution। अब हम चल रहे हैं जो बड़े क्वेश्चंस हैं आपके, इसका एक एक करके मैं सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगी और ये हमारे सॉल्यूशंस किस तरीके से प्रेजेंट करने थे आपको, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी वाला पार्ट आपका, और सेक्शन बी इज, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इट्स वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसके अंदर से बायबैक वाला क्वेश्चन आया था। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, पिछले साल भी हमारा बायबैक का क्वेश्चन आया था और इस साल भी हमारा बायबैक का क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको तीनों टेस्ट करने थे। तो पार्ट नंबर ए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं।
Under Articles of Association of ANR Limited, the buyback of equity share is permitted. Buyback of equity share is permitted. Therefore, the board of directors in their last meeting decided to buy back 40,000 equity shares of rupees 10 each at a price of 42. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर्स क्या करना चाहती है, बायबैक करना चाहती है। एंड कितने शेयर बायबैक कर रही है, 40,000, जिसकी फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपए, और बायबैक प्राइस जो है जिसको वो परचेज करेगी 42 रुपीज के अंदर वो परचेज कर रही है ईच, विद द रिकॉर्ड डेट ऑन 1 December 2025. Legal team has obtained all the regulatory approvals, including the approval from the shareholders. Key information pertaining to the last audited result as of 30th September 2025 are, आपको डिटेल्स दे रखी है। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 रुपीज ईच, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 2 लाख। जनरल रिजर्व इस क्रेडिट बैलेंस आपका, जिसके अंदर पीएनएल आपका है, क्रेडिट बैलेंस इंक्लूडेड है पीएनएल का 45 lakhs। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज कंसिडर्ड एज अ फ्री रिजर्व। 8% डिबेंचर्स दे रखे हैं, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक, करंट लाइबिलिटीज, कैश एंड बैंक बैलेंस। वेरीफाई, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है, यानी कि आपको लिमिट्स बतानी है और कंफर्म करके ही बताना है कि जो कंपनी 40,000 शेयर्स बायबैक करना चाहती है क्या वो बायबैक कर सकती है, क्या क्या उसको लिमिट, क्या वो विद इन द लिमिट काम कर रही है क्या, ये हमें कंफर्म करना है और वेरीफाई करना है। और वेरीफाई आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग द थ्री टेस्ट हम यहाँ पर करने वाले। वेदर द बायबैक प्लान ऑफ द कंपनी मेट्स ऑल द कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बायबैक। यानी कि बेसिकली हमें वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है कि कंपनी 40,000 जो इक्विटी शेयर्स बायबैक करना चाहती है क्या वो विद इन द लिमिट काम कर रही है या विद इन द लिमिट काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया था। हमने काफी सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टेस्ट निकाले थे, दैट इज कॉल्ड द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड दैट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों का मिनिमम, वही कंपनी मैक्सिमम क्या कर सकती है, बाय बैक कर सकते हैं, दिस इज द लिमिट। अब आते हैं, सबसे पहला टेस्ट है आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कैसे निकालते हैं, 25% ऑफ इट्स शेयर्स। शेयर्स हमारे यहाँ पर देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन के अंदर आपके शेयर्स कितने हैं, शेयर्स हैं आपके यहाँ पे शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। 2 लाख का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 2 लाख का 25%, 2 लाख का 25% अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर एज पर योर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कितना हो गया, 50,000 शेयर्स यहाँ पे बिल्कुल आप बायबैक कर सकते हो एज पर योर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो यहाँ पे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने निकाला। देन हम नेक्स्ट टेस्ट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट आपका क्या कहता है, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप शेयर कैपिटल बोले तो जितनी आपकी कैपिटल है प्लस जितने भी आपके फ्री रिजर्व्स है वो सब आप करोगे कैलकुलेट, टोटल करके उसका 25% निकालोगे। दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी परमिटेड फॉर द बायबैक। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ, किससे डिवाइड करोगे, बायबैक प्राइस से, तो आपके पास क्या निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपका यहाँ पर, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। फ्री रिजर्व्स में हमारे पास क्या क्या इंक्लूडेड है, फ्री रिजर्व्स में फ्री रिजर्व में आपके पास जनरल रिजर्व इज कंसिडर्ड एज अ फ्री रिजर्व।
डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज कंसिडर्ड एज अ फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल आपको दे ही रखा है, तो चलते हैं यहाँ पर। पेड अप शेयर कैपिटल इज 20 lakhs, 20 lakhs plus 45 lakhs plus 5 lakhs, तो 25% ऑफ 70 lakhs, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 17,50,000। देन उसके बाद हमारा आ जाता है मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड, कितना आ गया 17,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक विल बी इक्वल टू 17,50,000 डिवाइडेड बाय 42, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने बाय बैक कर सकते हो एज पर योर रिसोर्स टेस्ट, 41,41,667 शेयर्स आप बाय बैक कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट पे। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लीजिए आप टोटल डेट। टोटल डेट यहाँ पर कितना है 8%, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप दोनों ही डेट ले सकते हो। यहाँ पर 8% डिबेंचर्स हो गया, सिक्योर्ड लोन प्लस करंट लाइबिलिटीज, दैट इज द टोटल डेट आपका निकल कर आ गया कितने का 60 lakhs का आपका टोटल डेट है। उसके बाद टोटल इक्विटी ऑब्लिक शेयर होल्डर फंड कितना हो गया आपका, जो हमने रिसोर्स टेस्ट के अंदर निकाला था, दैट इज कॉल्ड द 17,50,000। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम शेयर होल्डर फंड आपको कितना, क्योंकि आपको डेट इक्विटी रेशियो जो मेंटेन करना है वो 2:1 से मेंटेन करना है, तो जितना डेट होगा उसी का आधा आपको मेंटेन करना होगा किसमें, डेट इक्विटी शेयर होल्डर फंड में मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे लेट द अमाउंट मिनिमम शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी आपको रिक्वायर्ड है आफ्टर बायबैक विल बी इक्वल टू 60 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड द 30 lakhs आपको करना है। लेट द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, आप अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में वो कितना होगा आपका एक्स। हम दो इक्वेशन अब इससे फ्रेम करने वाले हैं। लेट द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर विल बी इक्वल टू एक्स, लेट द मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड फॉर द बायबैक विल बी इक्वल टू वाई, कितना मैक्सिमम अमाउंट परमिट किया गया है वो वाई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई। इक्वेशन नंबर 1 आपका मिनिमम अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फंड है दैट इज कॉल्ड द 17,50,000, इसमें से कुछ अमाउंट आप सीआरआर में भेजोगे, इतना आपको मिनिमम मेंटेन करना है, दैट विल बी इक्वल टू वाई। इक्वेशन नंबर 2 आपकी यहाँ पे फ्रेम होगी, मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू इतना अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे सीआरआर के अंदर, तो y विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 इज फ्रेमिंग एज 4.2x। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो से आपका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कभी भी शेयर्स आप बायबैक नहीं कर सकते हो। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, निल। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप तीनों टेस्ट का मिनिमम देखेंगे तो तीनों टेस्ट का यहाँ पर देखेंगे मिनिमम एज पर योर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट इज 50,000 शेयर्स, रिसोर्स टेस्ट के अंदर 41,667 शेयर्स, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से आपका निल शेयर्स आ रहे हैं, बिकॉज बच्चों नेगेटिव यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इन तीनों का लोअर इज निल, जीरो, जीरो शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंपनी बायबैक कर रही है 40,000 इक्विटी शेयर्स, वो बायबैक नहीं कर सकती है, बिकॉज आपका ये पर जो लिमिट्स है वो आपको अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी का लिमिट जो कह रही है वो कंपनी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे कुछ भी शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती। हमारा आंसर ही यही है, आंसर इज कंपनी कांट बायबैक एनी इक्विटी शेयर्स। अब मैं यहाँ पर चल रही हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी आपका क्या है, द बुक्स ऑफ द प्रीमियर कंपनी लिमिटेड showed the following balances, showed the फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2025। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन है ये, रिडम्पशन का क्वेश्चन है, जिसके हमने कम से कम कॉपी के अंदर हमने 20 एग्जाम्पल्स तो लिखे हैं, साथ ही साथ हमने बहुत सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए, जीएससी मैट किया, प्लस आपका स्टडी मटेरियल हमने कंप्लीट किया था। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्टडी मैट से सिमिलर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग।
30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। आपके इक्विटी शेयर्स हैं, कैपिटल कितने की दे रखे? 3 लाख की। 5,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, वो भी फुल्ली पेड अप है। कितने के? 5 लाख रुपए के। दिस इज द 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड दिस इज द 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। 8% रिडीमेबल मतलब दो टाइप के शेयर्स हैं यहाँ पर, एक तो 10% वाले, एक 8% वाले। अब क्वेश्चन कौन से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात कर रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जिसके अंदर अभी तक 70 रुपए ही कॉल्ड अप हुए, यानी कि ये वाले शेयर्स आपके फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप नहीं है। तो अगर इन शेयर्स को क्या करना है, बायबैक रिडीम करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपको इसको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। पहले हम लेकिन क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कौन से प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की बात करी है, पहले हम वो जानते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। बच्चों P&L, प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर दे रखा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको दे रखा है। इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं 2,40,000 के। कैश एट बैंक दे रखा है 79,200 का। ऑन 1 अप्रैल 2025 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, विच आर एलिजिबल फॉर redemption, which are eligible for redemption. This line is very important कि क्या है एलिजिबल फॉर रिडम्पशन। अभी हमारे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, these 10% redeemable preference share are eligible for redemption because these shares are fully paid up। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे these are not eligible, यानी कि हम इन preference shares को redeem नहीं करेंगे, केवल और केवल 5,000 शेयर्स ही आप क्या करोगे, रिडीम करोगे। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काफी कुछ गलतियां कर दी होंगी क्वेश्चन को रीडिंग करने में। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले इसको फुल्ली पेड अप बनाया होगा और फिर पूरे के पूरे 6,000 शेयर्स को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन में एलिजिबल है रिडम्पशन के लिए, उन्हीं को ही कंपनी ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ रिडीम किया है। यानी कि यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर्स ही केवल और केवल रिडीम किए गए हैं। बाकी के जो प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं थे, उनको रिडम्पशन नहीं किया गया एट अ प्रीमियम। और रिडम्पशन आपका किस पे हो रहा है, 8% के प्रीमियम पर हो रहा है। इज दैट ओके? इन ऑर्डर टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करना था, पे करना था। ऑब्वियसली द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, सेल करेगी। यूज कंपनीज फंड एंड टू रेज, कंपनीज के पास जो फंड है उसको यूज करते हुए कंपनी क्या कर रही है, एक तो इन्वेस्टमेंट बेचा और दूसरा बैलेंस जो था उसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर गए हैं। और एक शेयर इक्विटी शेयर है की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की, जिसके लिए आपने, जिसको आपने 1 रुपए के प्रीमियम पर क्या किया, इशू किया। सब्जेक्ट टू लिविंग अ मिनिमम बैंक बैलेंस आपको कितना छोड़ रहा है, 19,200 का आफ्टर सच रिडम्पशन। इन्वेस्टमेंट आपने कितने के बेच दिए, 2,16,000 के। अब सबसे पहली बात ये आती है कि क्या मुझे फाइनेंस के लिए सोचने की जरूरत है क्या? देखो, दो चीजों का कंप्लायंस तो मुझे करना ही है, एक तो सेक्शन 55 का कंप्लायंस करना है, दूसरा मुझे प्रीमियम का राइट ऑफ भी करना है। क्योंकि जो शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो वो 10-8% के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, इसका मतलब मुझे वो शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने के लिए बात करी गई है, वो फाइनेंस के लिए बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस के लिए बात करी गई थी। सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर फंड्स प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ फंड्स चाहिए, उसके लिए कंपनी ने सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। वो भी 10 रुपए का शेयर 1 रुपए के प्रीमियम में इशू गया है। दैट मीन्स इशू प्राइस इज ₹11 पर शेयर। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड किया है, वो उसने सोल्ड किया है 2,16,000 में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था बच्चों, वर्किंग करना। वर्किंग करने से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन आपको एक समराइज्ड फॉर्म में पता चल जाता है और उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज करना तो बेहद आसान काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट
बी, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे फ्रंट में आपकी जर्नल एंट्रीज देखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला आपका जर्नल एंट्री का होना चाहिए काम। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। वर्किंग में यहाँ पे देखिए तीन चीजों का मुझे कंप्लायंस देखना था। एक था मेरा सेक्शन 55, एक था मेरा प्रीमियम, और दूसरा था मेरा कैश रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। देखिए सबसे पहला काम मैंने प्रीमियम को राइट ऑफ किया। प्रीमियम अवेलेबल था 30,000 का, वो मैंने 30,000 पूरा यूज कर लिया। फिर मैंने क्वेश्चन में चेक किया कि प्रीमियम आपको रिसीव होने वाला है, तो उसके लिए यहीं पे इसको होल्ड करके हमने सबसे पहले यहाँ पे कैश के लिए जाना। कैश में यहाँ पे अवेलेबल कितना था, 60,000, क्योंकि बच्चों 19,200 मुझे छोड़ना था, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी केवल और केवल कैश की कितनी है, 60,000। उसमें से आप अगर 4,80,000 की आपको जरूरत थी, जिसमें से आपने 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट भेज दिया, तो 2,64,000 आपको पैसा चाहिए था। और उसके लिए क्वेश्चन ने कहा था कि नए शेयर्स इशू कर लेना, तो हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ से 11 से डिवाइड होंगे, नॉट 10, बिकॉज यहाँ पे हम फाइनेंस के लिए क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो 2,64,000 डिवाइडेड बाई 11, 24,000 इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, जिसके ऊपर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव होगा वो 24,000 इंटू 1 रुपीज के हिसाब से 24,000 सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव होगा, जो कि सफिशिएंट है फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम। हमने ये वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। जो आपने नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो आपका, उससे आपका सेक्शन 55 कंप्लाई हो गया। बचे कुचे के लिए आपने क्या किया, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया, CRR में, और फ्री रिजर्व के नाम पे आपका क्या था, P&L। ये वर्किंग बच्चों हम लोगों ने कितनी करी है प्रैक्टिस, कम से कम मैं बता रही हूँ ना, आपने ऑलरेडी बता चुकी हूँ 20 क्वेश्चंस तो हमने आराम से खुद एग्जाम्पल फ्रेमिंग करके करे थे, और उसके बाद बुक स्टडी मटेरियल प्लस GSC मैट प्लस पास के क्वेश्चंस हमने सारे किए थे यहाँ तक की। और ये वर्किंग करना तो 2 मिनट का काम था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने एक अपनी क्लास में ही सीक्वेंस डिसाइड करके रखा था, जिसके अंदर हमारी कोई भी एंट्री स्किप होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने किया ड्यू, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद हमने स्टार्टिंग करी, इक्विटी शेयर इशू करा, फिर हमने P&L से CRR में अमाउंट ट्रांसफर किया, फिर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम को राइट ऑफ किया, फिर इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर आपने लास्टली क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। फ्री के नंबर थे बच्चों, अगर मैं दोनों ही क्वेश्चन की बात करूं, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए इज वेरी सिंपलेस्ट और पार्ट बी इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो 14 नंबर तो मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे के कटने नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे ये दोनों, बुक के ही क्वेश्चन थे, कुछ अलग नहीं था इनमें। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग का जो बहुत ही बच्चों को इंतजार रहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन था आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बस एक दो एडजस्टमेंट को छोड़ के पूरा क्वेश्चन आसान था, वो भी आसान था बस अगर अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, तो कंसेप्ट क्लियर है तो हर चीज आपके लिए इतना इजिएस्ट क्वेश्चन था ये भी 14 नंबर का, कि आराम से एक क्वेश्चन हर बच्चे से बन सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए सबसे पहले आ जाइए, आपका क्या है, द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ मल्टीवर्स लिमिटेड। मल्टीवर्स लिमिटेड का आपको क्या दे रखा है, ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल आप शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर दिखाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, और सॉल्यूशन भी मैंने इन डिटेल रखा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ 2,000, जिसके 5 लाख का टोटल कैपिटल है, 2,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, जिसके 2 लाख रुपए का तो प्रेफरेंस शेयर है, 3 लाख रुपए का आपका क्या है, इक्विटी शेयर्स है। द फॉलोइंग वाज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2025। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2025 का। आइए ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो देखिए कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एट कॉस्ट, इसका क्या मतलब हो, ये हमारे इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कुछ भी नहीं दे रखा तो हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मानते हुए यहाँ पे लिखेंगे, बट एक नोट लिख के जरूर आएगा कि हमने इन्वेस्टमेंट वी आर कंसिडरिंग एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स।
इन्वेस्टमेंट्स आपके आ गए 50,000, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। परचेजेस, परचेजेस आपका परचेजेस के अंदर जाएगा, पीएनएल के अंदर। सेलिंग एक्सपेंसेस आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपके चेंजेस है इन इन्वेंट्रीज के अंदर जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंटरिम प्रेफरेंस डिविडेंड इज इट इज अ पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन। हम रिजर्व एंड सरप्लस में से इसको माइनस करके दिखा देंगे। उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक तरीके से इसको राइट ऑफ करना है आपको, तो ये आपके पीएनएल के अंदर अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको खर्चा है। दैट बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने फाइनेंस लिया होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। इंटरेस्ट आप डिबेंचर्स पे देते हो, कोई भी लोन पे दे रहे हो, या फिर कोई ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हो, दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने अब तक 6 महीने का ही इंटरेस्ट क्या करा है, पे करा है, बाकी का 6 महीने का अभी डिबेंचर का इंटरेस्ट आपका क्या रह गया है, आउटस्टैंडिंग रह गया है। डेटर्स और क्रेडिटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट, पीपी का पार्ट बनेगा। फर्नीचर एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये आपको डब्ल्यूडीवी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। इसमें से 15,000 का डिप्रिसिएशन अब तक का टोटल इकट्ठा किया था, हम देखेंगे इसका करना क्या है, वैसे ही पीपी का पार्ट बनेगा आपके। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, वो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। 5% मॉर्गेज डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में आपने कोई एडवांस में टैक्स पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। और ये एडवांस टैक्स आपके अदर करंट असेट्स में चला जाएगा, क्योंकि ये आपकी असेट बनेगा। बहुत ही सिंपल। डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव इज अ पार्ट ऑफ योर अदर इनकम। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाके आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट। उसके बाद आ जाएगा आपका सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, technical know-how is a part of intangible asset, audit fee is a part of other expenses। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एडिशनल एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1,42,500। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के अंदर जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे। उसके बाद आपका इन्वेंट्रीज का पार्ट बनेगा, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 तो बहुत ही सिंपलेस्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है आपका, परचेजेस इंक्लूड 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कस्टमर्स। जो आपने यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है, एक तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कस्टमर्स के बीच में 5,000 के गुड्स। एक तरीके से आपने एडवर्टीजमेंट सेलिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं जनरली इनको, कि हमने एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपना बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या करा, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज कॉल्ड द, आपकी परचेजेस को ये कम करता है। तो एंट्री क्या होगी, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट। परचेजेस आपकी कम होगी तो परचेजेस कम हो जाएगी, तो टू परचेजेस और एडवर्टीजमेंट या सेलिंग एक्सपेंसेस आप मानते हुए इसको काम कर सकते हो। तो बच्चों ये क्या होगा, एक तो आपके परचेजेस में से लेस होगा, परचेजेस में से आपको माइनस करना पड़ेगा, दिस विल नॉट द पार्ट ऑफ परचेजेस। ये परचेजेस को आपको इंक्लूड क्या करता है, कम करता है। तो परचेजेस में से 5,000 एक तो लेस कर दीजिए फ्री सैंपल्स का, एडवर्टीजमेंट का या सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम का। और उसके बाद आप अदर एक्सपेंसेस में जाके इसको क्या कर दीजिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अलग से 5,000 जाके दिखा दीजिए। यानी कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, परचेजेस में से कम करना है और अदर एक्सपेंसेस में जाके ये 5,000 आपको चार्ज करना है एज एक्सपेंस के नाम का। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन है मेरे पास इन डिटेल, अभी रुकिए, बस एक बार एडजस्टमेंट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन पे मूव करूंगी। आइए, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड 2,000 बीइंग वेजेस incurred फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विच वर रिकॉर्डेड अंडर द फर्नीचर। क्या मतलब हुआ इसका, कि सैलरी और वेजेस के अंदर 2,000 रुपए आपके किसके नाम के इंक्लूड है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के नाम का जो इनकर किया था ना, उसका इंस्टॉलेशन के नाम का इनकर्ड है, जो कि रिकॉर्ड किया गया फर्नीचर के अंदर। यानी कि बेसिकली फर्नीचर के अंदर ही आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस सैलरी एंड वेजेस में से 2,000 तो हटाओगे, क्योंकि वो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है। रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है तो ये पीएनएल के अंदर भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, फर्नीचर की कॉस्ट में जाके इसे दोबारा ऐड बैक करोगे, क्योंकि
इट इज अ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल नेचर, और वो आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और फिर उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और फोर्थ पॉइंट है आपका, बिल रिसीवेबल इंक्लूड 1500 डिसऑनर्ड bills of 50% of which 50% of which had been considered irrecoverable। अच्छा ठीक है, पहले तो समझते हैं इसका पॉइंट का मतलब क्या है। वो जो 1500 रुपए के बिल क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं एंट्री से आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो बिल रिसीवेबल खत्म हो गए, और बिल जब डेटर्स होते हैं तभी तो होता है बिल रिसीवेबल, डेटर्स को ही तो इशू करते हैं हम। तो एक तरीके से हमारा डेटर अगेन बढ़ गया, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितने से होगा, 1500, क्योंकि इतने के बीआर आपके क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। बीआर डिसऑनर होने का मतलब डेटर बढ़ गया और बीआर कम हो गया। तो एक तो ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, इस 1500 का डेटर में जाके ऐड करना पड़ेगा और बीआर से 1500 रिड्यूस करना पड़ेगा। इज दैट ओके? पहले तो ट्रीटमेंट ये समझ में आना जरूरी है। उसके बाद जो बिल डिसऑनर हुए उसमें से 50% जो था वो इररिकवरेबल था। 50% इररिकवरेबल का मतलब यहाँ पे 50% का क्या हो गया है, बेड डेट्स हो गया है। और बेड डेट्स हो गया इररिकवरेबल, एक इररिकवरेबल मतलब यहाँ पर वो पैसा कभी भी आपको रिकवर नहीं होगा। तो 750 रुपए आपका क्या हो गया है यहाँ पे बेड डेट, और ये बेड डेट आप क्या करोगे, अदर एक्सपेंसेस में जाके इसे लेस करोगे, अदर एक्सपेंसेस में जाके पीएनएल में चार्ज करेंगे। उसके बाद आप डेटर में से भी माइनस करोगे, क्योंकि डेटर टोटल जितने भी होंगे उसमें से आप 750 का बिटेड भी क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स टू बी चार्ज एट 10% एट कॉस्ट। सारे ही पॉइंट बहुत ही मजेदार, इसमें हर एक में आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे बोला है वो 10% ऑन कॉस्ट बोला है, ना कि WDV वैल्यू बोला है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 35,000 रुपीज का यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है, ये आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन दे रखा है कि नहीं दे रखा, दैट मीन्स इट इज अ WDV, इट इज अ रिटन डाउन वैल्यू। लेकिन मुझे रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं लगाना, मुझे किस पे लगाना है, कॉस्ट पे लगाना है। अगर मैं इसमें वापस से डिप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो मैं कॉस्ट पे पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी। कॉस्ट मेरी कितने की हो गई, 50,000 रुपए की मेरी क्या हो गई है, कॉस्ट हो गई। अब 50,000 में आपने 2,000 जो नीचे हमने थर्ड एडजस्टमेंट में पढ़ा था, वो 2,000 आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा था, वो भी आपको इंक्लूड करना है, बोले तो 2,000। तो टोटल अब कॉस्ट कितने की हो गई, 52,000 की कॉस्ट हो गई, और इस 52,000 पे आपको 10% का क्या लगाना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इस 52,000 पे आप 10% का डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो 5,200 रुपीज का आपका डिप्रिसिएशन आएगा, और ये डिप्रिसिएशन आप पीएनएल के अंदर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर लिखेंगे, और साथ ही साथ पीपी के अंदर फर्नीचर के अंदर से इतना डिप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे। इज दैट ओके? चलिए अब बहुत ही सोचने वाला पॉइंट था। अगर इसकी रीडिंग अगर आपने ऐसे ही कर दी होगी तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन की रीडिंग बहुत सही तरीके से है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन की एक्यूरेसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है 10% ऑन एट कॉस्ट, इट्स नॉट ऑन WDV, तभी उसने अलग से डिप्रिसिएशन दे रखा है। अगर आप डिप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर दोगे, अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो कॉस्ट पे पहुंच जाओगे, और उस कॉस्ट में आपको 2,000 के कॉस्ट और ऐड करके 52,000 आपका क्या आ गया, पूरी कॉस्ट निकल कर आ गई। उस पर आप करंट ईयर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, 5,200 इज द करंट ईयर डिप्रिसिएशन। आइए उसके बाद आ जाते हैं हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटन ऑफ इन फुल। इसका क्या मतलब हुआ, जो डिस्काउंट हमें ऊपर दे रखा था वो रिटर्न ऑफ करना है, और वो रिटर्न ऑफ आप कहाँ से करेंगे, पीएनएल से करेंगे। और जब पीएनएल से करेंगे तो अदर एक्सपेंसेस में जाके आप क्या करना, एज एक्सपेंस की तरह मानते हुए ट्रीट करना। आइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द हाफ ईयर इज एंडिंग अप टू ड्यू ऑन दैट। ठीक है, हमें पहले ही पता था, जब 30 सितंबर तक का दे ही रखा था तो ऑब्वियस सी बात है 6 महीने का क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। तो आप करंट ईयर में तो टोटल इंटरेस्ट क्या करोगे, एज एक्सपेंस की तरह चार्ज करोगे, और आउटस्टैंडिंग जितना भी इंटरेस्ट रह गया दैट इज अ पार्ट ऑफ योर अदर करंट लाइबिलिटी।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अमाउंटेड टू रुपीज, बहुत ही सिंपल। आपने इतना जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें से आप प्रोविजन इतने का माइनस कर देंगे 4,000 रुपए का, और आपका क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर, एक तो पीएनएल के अंदर आफ्टर टैक्स बनाने के लिए काम आएगा, और दूसरा आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जाएगा, क्योंकि आपने 4,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है। आइए, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, टेक्निकल नो हाउ फीस इज टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ आपके पास यहाँ पे कितने का दे रखा है? देखिए, टेक्निकल नो हाउ यहाँ पर जो दे रखा है वो आपको है 10% का, वो सॉरी 1,50,000 का, जिसको आपको 10 सालों के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ करना है। अब पूरा 10 साल में करना है, तो इस साल में पूरा का पूरा 1.5 लाख तो नहीं कर सकते, तो इस साल कितना करेंगे, 15,000। तो 15,000 कैसे आएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, बोले तो 15,000 का आप क्या करोगे, इस साल करंट ईयर में राइट ऑफ करोगे, तो बाकी का टेक्निकल नो हाउ आपके इंटेंजिबल असेट में दिखेगा, और जितना आप राइट ऑफ करोगे वो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट को, जब आप फिक्स्ड असेट को डिप्रिशिएट करते हो तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर जाता है, तो जब इंटेंजिबल असेट को भी आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तो भी वो अमोर्टाइज कर रहे हो, तो अमोर्टाइजेशन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, इट इज अ पार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, जिसको सभी का जिसको इंतजार है यहाँ पर। चलिए आइए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने सीधा यहाँ पे क्या लिखा, सेल्स लिखोगे, तो सेल्स आपकी आ जाएगी 6,70,350। अदर इनकम के अंदर आपकी सीधी सीधी डिविडेंड इनकम आएगी, बोले तो कितनी की, 4,250। उसके बाद आप लगाएंगे टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ ए के बाद आपका आएगा यहाँ पर 6,74,600 इज द टोटल इनकम ऑफ पी एंड एल। अब आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज निल। परचेजेस आपकी टोटल थी 4,90,500, उसमें से 5,000 परचेजेस आपको कम करनी थी, क्योंकि वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एज अ फ्री सैंपल की तरह, एडवर्टीजमेंट की तरह एक्सपेंसेस था, तो यहाँ पे आपको 5,000 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल परचेजेस आपकी कितनी आ जाएगी, टोटल परचेजेस आपकी आ गई 4,85,500। फिर उसके बाद हमारा क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, दैट इज ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग और दिस इज क्लोजिंग, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज 2,700 इज अ पॉजिटिव फिगर। देन उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस आएगा। सैलरी एंड वेजेस के अंदर 52,000 आपका सैलरी एंड वेजेस था, जिसके अंदर 2,000 आपका इलेक्ट्रिक फिटिंग का खर्चा भी जुड़ा हुआ था, तो उसमें से इसको आपने माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया 50,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट 7,500। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितने का है टोटल, डिबेंचर्स ये रहा 5%, यानी कि 1.5 लाख का 5% बोले तो 7,500, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 7,800। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7,500 प्लस 7,800, दिस 7,500 इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दिस इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, 7,500 इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। टोटल फाइनेंस कॉस्ट इज 15,300। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बच्चों डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर देखिए 35,000 आपका क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू थी। रिटर्न डाउन वैल्यू पे आपने ऐड कर दिया इसमें डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, प्लस आपने इलेक्ट्रिक की फिटिंग का ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट इज 52,000। 52,000 का 10% बोले तो 52,000, 5,200, उसमें 15,000, ये 15,000 कैसे आया, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये 15,000 आपके डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर आएगा, तो टोटल आपका कितना आएगा, 20,200। टोटल डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज 20,200, ये टोटल करेंगे आप। उसके बाद आ जाइए अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपके लिए नोट बना के रखा है, अदर एक्सपेंसेस, इसके बाद बैलेंस शीट है। अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे, अदर एक्सपेंसेस,
चलिए बच्चों, अदर एक्सपेंसेस में मैं आपको बताती हूँ। अदर एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या आएगा। और अदर एक्सपेंसेस में देखिए, सबसे पहले आपका आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस के अंदर, एक तो सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों। और उसके बाद आपका टेक्निकल नो हाउ तो हो चुका है, ऑडिट फीस आ जाएगा आपका, बेड डेट्स आ जाएगा, ऑडिट फीस आ जाएगा। ये सारे आपका मिला के क्या आ जाएगा यहाँ पर, अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो अदर एक्सपेंसेस आपका 750 बेड डेट्स हो गया। तो अदर एक्सपेंसेस में आपका देखिए बेड डेट्स, डिस्काउंट और ऑडिट फीस, सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस 5,000 का एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी आएगा, 5,000 का एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी आएगा। तो टोटल करके आप देखेंगे तो 92,850 का आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है क्या। अदर एक्सपेंसेस में आप 5,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी लेंगे, क्योंकि वो आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा हो गया जिसके अगेंस्ट में कुछ भी पैसा नहीं मिला, दैट इज द सेलिंग एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। और नॉर्मल सेलिंग एक्सपेंसेस जो आपको दे रखे हैं वो तो आप लोगे ही लोगे, प्लस आपका डिस्काउंट लेना है, बेड डेट्स लेना है, बेड डेट आपका 750 का हो गया, वो भी तो आप पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल करेंगे, आपका टोटल ऑफ बी आ जाएगा 6,60,6,500। फिर ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ए में से अगर आप माइनस करेंगे बी को, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो 8,050 आएगा, जिसमें से आप टैक्स माइनस करोगे 4,000 का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा 4,050 रुपए का। दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपका यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट यहाँ पे कैसे आएगा। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करना था, रिजर्व एंड सरप्लस का अगर आप टोटल करेंगे तो ओपनिंग रिजर्व पीएनएल कहाँ है आपका, ओपनिंग पीएनएल ये रहा। देखिए ओपनिंग पीएनएल इज 28,500। आइए टोटल करते हैं, 28,500 प्लस उसमें आप कर दीजिए इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट 4050 माइनस 6,000 का आपका इंटरिम डिविडेंड। तो ये आपका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट। एक बार आप टोटल कैलकुलेशन करके यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख दीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका 5% का डिबेंचर्स आ जाएगा 1.5 लाख का। उसके बाद आपका ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, अदर करंट लाइबिलिटी में आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया। और इसी के साथ बच्चों टोटल ऑफ ए आपका कितना आ गया, यानी कि लाइबिलिटी साइड का टोटल इज 8,22,150। 8,22,150 इज द टोटल। अब आ जाते हैं पीपीई के अंदर। बच्चों पीपीई के अंदर मैंने डायरेक्टली अमाउंट जरूर लिख दिया, लेकिन मैं आपको क्लैरिफिकेशन इसका जरूर दूंगी। कितना है आपका, देखिए टोटल आपका था 52,000। 52,000 में से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए कितने का। देखिए करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, अभी तक का जो डिप्रिसिएशन था वो 15,000 था, प्लस 5,200 और डिप्रिसिएशन आ गया, तो 20,200 का अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 31,800। आपका एक तो फर्नीचर आ गया, प्लस प्लस आपका क्या आ जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको कितने की दे रखी है यहाँ पर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है 3,50,000। तो 3 लाख, देखिए तो 3,50,000 प्लस 31,800, तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा 3,81,800। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट में टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ टोटल कितने का था, 1.5 लाख का। और 1.5 लाख में से आपने इस साल 15,000 माइनस करोगे तो 1,35,000 का आपका यहाँ पर आ जाएगा। अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका कितने का हो गया, 50,000, जो कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन ही था। इनटेंजिबल टेक्निकल नो हाउ 1.5 लाख का था, 15,000 आपने माइनस कर दिया क्योंकि वो इस साल आपका राइट ऑफ हो चुका है, तो 1,35,000 का यहाँ पर आ गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे 50,000 का हो चुका है। उसके बाद करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज सीधा सीधा आ गया आपके पास। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके दिखाऊंगी ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स हमारा है 50,100,
चलिए, अब यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स देख रहे हैं हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड रिसीवेबल थे 50,100 के, उसमें आपने और ऐड कर दिए बिल रिसीवेबल, कितने का, 1,500 रुपए का बिल रिसीवेबल और ऐड कर दिया, तो 51,600 का आपका ये आ गया। उसमें से अगर आप 700 बेड डेट माइनस करेंगे, बेड डेट कितने का है, 750 का, तो आपके पास ये आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, आप इसको कर लीजिए टोटल। 51,600 में से माइनस करेंगे 750, तो आपके पास डेटर्स निकल कर आ जाएगा। फिर डेटर्स के बाद आपका बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दोनों इंक्लूड होते हैं, एक तो डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स। तो डेटर्स में आपका यहाँ पर 51,600 में से माइनस कर देंगे 750, तो आपके पास आएगा यहाँ पर 50,850, उसमें बिल रिसीवेबल और ऐड कर देंगे। बिल रिसीवेबल आपके टोटल कितने थे, 50,850 था ना, बिल रिसीवेबल आपका टोटल है यहाँ पर 41,500। हाँ, 50,850 प्लस उसमें अगर आप बिल रिसीवेबल करेंगे तो बिल रिसीवेबल आएगा आपका 41,500 था, उसमें से अगर आप डिसऑनर जो बिल हो गया उसको माइनस कर देंगे तो 1,500 का आएगा, तो 40,000 आपका बिल रिसीवेबल आएगा। तो यहाँ पर ये 40,000 का, तो टोटल इज 90,850 का। समझ में आ रहा है, डेटर्स का समझ में आया आपको। डेटर टोटल डेटर्स थे, उसमें से हमने वापस ऐड कर दिया बिल रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गए, इसका मतलब आपका डेटर बढ़ गया, और उसके बाद आपने बेड डेट माइनस करके 50,850 आ गया, प्लस 40,000 किया तो 90,850 आ गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सीधा अमाउंट आएगा 12,000 का। अदर करंट असेट के अंदर आ जाएगा आपका एडवांस टैक्स, अदर करंट असेट के अंदर आ जाएगा आपका एडवांस टैक्स 10,000 का, जो कि आपने करंट ईयर में पे कर दिया एडवांस में ही, दैट इज कॉल्ड द एडवांस टैक्स। 10,000 का टोटल करेंगे तो 8,22,150 आ जाएगा। आपको नोट्स टू अकाउंट से ये सब समझ में आ रहे हैं क्या, कैसे हम लोगों ने अमाउंट निकाला। बाकी सब अमाउंट तो बहुत ही आसान थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड दे रखा था आपको, अदर करंट असेट के अंदर एडवांस टैक्स दे रखा है 10,000 का, उसके बाद इन्वेंट्रीज आपको दे ही रखा था। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का इंपॉर्टेंट था जानना, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब मैं चल रही हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूँ 14 में से 14 नंबर आने चाहिए थे। अगर मैं पूरे ओवरऑल पेपर की ही बात करूँ तो ये पूरा ओवरऑल पेपर ही एग्जामिशन का पेपर था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये भी अगेन मैं कहूँ स्कोरिंग क्वेश्चन था ये भी। प्रोमोर बैंक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एडवांसेस एज ऑन 30 सितंबर 2025। अब आपने एडवांस दिए एग्रीकल्चर और एसएमई को, तो उस पे आपका रेट ऑफ प्रोविजन मैंने आपको कॉपी में लिखवाया ही था, सबने हमने इन डिटेल लिखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे हर एक का प्रोविजन डिस्कस किया था, रेट क्या लगेगी, कमर्शियल रियल एस्टेट की क्या लगेगी, स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड लॉस, डाउटफुल वन वन से लेके 3 ईयर और मोर देन 3 इयर्स आपको दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड बाय द बैंक। आपको 7 नंबर में ये निकालना था कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ आइए। सबसे पहले कैलकुलेट ऑफ द प्रोविजन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन टू बी चार्ज्ड बाय द बैंक इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एडवांस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई टोटल इतना अमाउंट था, रेट आपका 0.25% है, तो प्रोविजन लगाएंगे अमाउंट पे 1.7625। एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट 1125, जिसपे 1% का आपका रेट था, तो 1.25। स्टैंडर्ड असेट पे 0.4, सब स्टैंडर्ड असेट पे वी आर अज्यूमिंग, अगर कुछ नहीं दे रखा कि सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, तो वी आर अज्यूमिंग इट इज अ सिक्योर्ड। और लॉस असेट पे पूरा 100%, डाउटफुल पे 25%, 40% एंड 100%। अगर आप रेट ऑफ प्रोविजन निकालेंगे टोटल अमाउंट आपका कितना आने वाला है, वो अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज 1205.3645 CR। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का
बी पार्ट पे, जो कि अगेन इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। पर जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और वो भी बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था, जिसको आप इजीली अटेम्प्ट करके 7 नंबर स्कोर कर सकते थे, जिसके अंदर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना था। पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दिस फिगर्स आर इन करोड्स आपको दे रखा है, जिसमें आपको ओपनिंग इक्विटी दे रखी है 8,000 की, एडजस्टमेंट इन ओपनिंग इक्विटी इज nil, इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर, आपने फर्स्ट 3 इयर्स में तो 1,000 एडिशन किया, देयर आफ्टर 1250 किया, ठीक है। डिक्रीज ड्यू टू द रिवर्सल एंड डीकैपिटलाइजेशन की वजह से आपने डिक्रीज कर दी कैपिटल को, कितने से, 250 से, और ओवर 5 इयर्स मतलब 5 सालों के लिए, ठीक है। डिक्रीज ड्यू टू डिस्चार्जेस ओवर 5 इयर्स, 5 सालों के लिए आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब ऐड कर देंगे इसमें, ये ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, ये एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कितना हो गया, इनिशियल 3 इयर्स के लिए तो 18% है, देयर आफ्टर कितना हो गया, 15%। तो फर्स्ट 3 इयर्स आपका 18%, देयर आफ्टर 15%। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर निकालना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, आइए। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, सबसे पहले आपको आपको एक एक साल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बनने वाला है। तो ओपनिंग इक्विटी आपका 8,000, उसमें आप एडिशनल इक्विटी 1,000 का करोगे, डिक्रीज कर दिया तो लेस कर दिया, इंक्रीज करोगे तो ऐड करोगे, तो क्लोजिंग इक्विटी आपके पास कितना आ गया, 8850। अब आप क्या करोगे, जो ओपनिंग है प्लस क्लोजिंग जो है उसका क्या करोगे, एवरेज करोगे, दैट मीन्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 8425 आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, इस पर सीधा रिटर्न लगाइए, तो 1516.5 सीआर, 1.1 वो सॉरी 1516.5 आ गया आपके पास। जो इस साल का क्लोजिंग वो अगली साल का ओपनिंग, तो 8850 प्लस 1,000 माइनस का 250 प्लस का 100, तो कितना आ गया, 9,700। और अगर आप एवरेज करेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9275 आ गया। उसी तरीके से 18% का रेट लगा के रिटर्न ऑन इक्विटी आपका आ गया 1669 उसके बाद इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, उसी तरीके से ये हो गया और ये हो गया। तो आप इस तरीके से रिटर्न निकाल सकते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए आपका 18% है, बाकी के आने वाले सालों के लिए 15% है। दिस इज द आंसर ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बोला था इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और देखिए अगेन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, हमने रिवीजन क्लास में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्लासेस की बात करूं मैंने एडिशनल क्वेश्चंस इसके ऊपर कराए थे आप लोगों को, और वही क्वेश्चन आपका उठ कर आ गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। In discussion, इन लिमिटेड सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट फॉर द 2023-24 का आपको लिखा हुआ है 20,000, 24-25 का लिखा हुआ है 30 लाख, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू आपका कितना है, 10 लाख शेयर्स है। टर्म्स ऑफ राइट इशू कब है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि रेशियो इज 1:4। आपका राइट इशू से पहले 10 लाख का शेयर था। राइट इशू प्राइस आपका कितना है, 20। डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग कितना हो गया, 30/6/2024, यानी कि आपने एक्सरसाइज कब किया, लास्ट ऑप्शन क्या, लास्ट डेट क्या था, 30/6/2024 का था आपका। फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर प्रायर टू राइट इशू क्या कितना था, दैट इज कॉल्ड द एमपीएस कम राइट प्राइस। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एमपीएस एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एडजस्टिंग फैक्टर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज बिना एडजस्टिंग फैक्टर के भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बेसिक ईपीएस फॉर 2023, 2024, 24, 25, यानी कि दोनों सालों का एक तो आपको नॉर्मल बेसिक ईपीएस निकालना है, और दूसरा आपको रीस्टेटेड ईपीएस भी निकालना है 2023-24 का। चलिए अब इसके क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉल्यूशन के मूव करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे तो नॉर्मल बेसिक ईपीएस का आपको फॉर्मूला सभी को पता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपका कितना है, 30 लाख। पहले सबसे पहले 24-25 का कर रहे हैं तो 30 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज नंबर के लिए निकालने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी वर्किंग, तो कंप्यूटेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ
एक्स राइट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, 4 शेयर्स हेल्ड इतना, वन राइट शेयर आ गया 20 का, तो 5 शेयर्स कितने का आ गया 120 का, तो पर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज कॉल्ड द 24 रुपीज पर शेयर आएगा। उसके बाद बोनस फैक्टर आपको निकालना है, बोनस नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ राइट, इट्स नॉट राइट इज बोनस शेयर्स, ओ सॉरी, नंबर ऑफ राइट शेयर्स ही है बच्चों, उसके अंदर बोनस एलिमेंट निकालेंगे। राइट शेयर्स कितना, 1 लाख डिवाइडेड इंटू 1/4, तो 2.5 लाख शेयर्स। अब 2.5 लाख में से कितना बोनस होगा, फुल अमाउंट के शेयर्स निकाल रहे हैं, तो 2.5 लाख पे आपको 20 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। अगर 24 के हिसाब से कन्वर्ट करोगे इन्हें, तो 2,08,333 शेयर्स आएंगे। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपके कितने हो गए, 2.5 लाख माइनस 2 लाख, तो 41,667 आपके बोनस शेयर्स है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालेंगे, तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो आएगा वो 11,97,916.75 समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 11,91,997 को डिवाइड करोगे तो 2.50 पर शेयर आपका बेसिक ईपीएस निकल कर आएगा 2024 और 5 का। उसके बाद बेसिक ईपीएस तो ये तो बहुत ही सिंपल, 20 लाख का आपको दे रखा था, 10 लाख शेयर है, 2 रुपए पर शेयर इज अ बेसिक ईपीएस। अब निकालने की बारी आती है आपका राइट एडजस्टमेंट, वो रीस्टेटेड ईपीएस। रीस्टेटेड ईपीएस के अंदर 2023 और 2024 के अंदर 20 लाख का तो आपका प्रॉफिट था, जिसके अंदर बच्चों ये कैसे आया, देखो 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी थे, प्लस बोनस, हमने बोनस का प्रोविजन पढ़ा था ना। बोनस का प्रोविजन क्या था, अगर किसी भी साल में आप बोनस क्या करते हो, इशू करते हो, तो हमें क्या मानना है, करंट ईयर के बिगिनिंग में, और प्रीवियस ईयर का निकालना है तो प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में। तो प्रीवियस ईयर में आपके इतने शेयर्स थे, प्लस बोनस भी आप क्या मानोगे, प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,41,667। तो यहाँ पे आपका बेसिक ईपीएस, रीस्टेटेड ईपीएस इज 1.92 रुपीज पर शेयर निकल कर आएगा। आखिरी क्वेश्चन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसके बाद हम लोग ऑडिटिंग वाले पार्ट पे भी चलेंगे। चलिए आइए, आखिरी क्वेश्चन आपका, ये भी अगेन बच्चों बुक का क्वेश्चन था आपका। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एडीएफ लिमिटेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री। इस बार बच्चों थोड़ा सा एग्जाम पेपर वाले बनाने वालों ने गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया, पिछले से अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट की बात करोगे ना, तो 7 नंबर का एएस आता है, इंड एएस आता है, लेकिन इस बार 14 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, यानी कि 7 नंबर के दो दो पार्ट्स दे दिए। यानी कि इस बार कैश फ्लो जो हर साल आता था वो इस बार कैश फ्लो आया ही नहीं। यानी कि पेपर ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया बच्चों के साथ इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, अगर आ भी गया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही एज अ टेस्ट क्वेश्चन उठकर आ गया है यहाँ पर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन of ADF Limited is available in respect of the inventory as on 30 सितंबर 2025। अब आपको कॉस्ट निकालनी है इन्वेंट्री की, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंड एएस 2। तो देखिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज प्राइस, क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड होगा एएस 2 में, मैंने आपको बच्चों लिखवाया था, बहुत अच्छे से कॉपी में इन डिटेल लिखवाया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। चलिए आइए, परचेज प्राइस आपको यहाँ पर दे ही रखा है, परचेज प्राइस है आपका यहाँ पर, ये आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, पेनल्टी ओवरड्यू पेमेंट का ये इंक्लूड नहीं होगा, डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस आपको दे रखा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटीज, फॉरवर्डिंग चार्जेस फॉर एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, इंटरनल स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ रेफरेंस, इंटरनल ट्रांसपोर्ट बिटवीन स्टॉक लोकेशन, कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड। आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, आइए मैं आपको चलती हूँ सोल्यूशन की तरफ। चलिए आइए, सबसे पहले आपने क्या करा, परचेज प्राइस, उसमें से डिस्काउंट जो मिला वो आपने लेस कर दिया 2% का, फिर जीएसटी आपने ऐड कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज, फॉरवर्डिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ रेफरेंस और कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सब आपने ऐड करके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर निकाल दिया होगा 4,09,775। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्वेश्चंस। और बच्चों सच बता रही हूँ, एग्जामिनेशन का ही पेपर था, इतना सिंपल पेपर था जिसमें आपको इजीली इजीली 55 और 60 प्लस मार्क्स तो आराम से आ सकते थे। अब हम चल रहे हैं ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की तरफ, और चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ का पार्ट ए, इलॉबरेट द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बच्चों ये आपको मैम ने कॉपी में भी लिखवाया होगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये पार्ट ए का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 relating to the secretarial audit. Again this is the question of part B। क्वेश्चन नंबर 7th पे मूव कर रहे हैं, एनालाइज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑडिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। दिस टोटली क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम द पार्ट बी। पार्ट बी से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उठकर आया है, और जो नफरा के बारे में मैम ने बहुत ही ज्यादा इन डिटेल आपको कॉपी में लिखवा ही रखा होगा, और ऐसा एक्सपेक्टेड उनका यही था कहना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी आपका पार्ट नंबर बी का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग मूव कर रहे हैं, how you will conduct the audit of municipalities and panchayats। This is the question of part B। And examine the provisions, sorry, this is the question of part C, examine the provision of the Companies Act 2018 for the removal of the company। This is the question of part B। तो ये था आपके ऑडिटिंग के क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे आपके ऑडिटिंग के भी और कॉर्पोरेट के भी एज वेल एज। सो बच्चों आज का हमारा डिस्कशन जो इन डिटेल हमने किया वो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, और आपके बढ़िया से नंबर आए कॉर्पोरेट के अंदर, सभी के बच्चों के एग्जामिशन आए मोस्टली। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।